Watson and Crick, they were working on the structure of DNA. Particularly Crick was the guru of Watson, so Crick was working already. Watson assisted him, and they were working on the structure of the DNA. And this was the time of 1953 when the DNA structure was deciphered. But definitely the work was going on much before that. 1952 is the year when that Hershey-Chase experiment, Hershey and Chase, they proved that the viruses, the bacteriophages, when they attack the host cell, the material, the component that enters into the host cell is the DNA. It's not the protein capsid. That thing was proved in viruses. Before that, in 1944, via transformation, it was already proved that DNA is the transforming principle, isn't it? So 1944, 45, 46, 47, 48, 15, all these years, they were very crucial in terms of molecular biology when basic things were being developed. That how this DNA is being executing its function, how it is converted. If you say that DNA is responsible for the transformation in bacteria, for the conversion of R2 strains to S3 strain, as the experiment was done by Griffith in 1928, he couldn't explain or find what particular factor is causing this change. But definitely he saw that this change is taking place. The R2 strains are being transformed into S3 strains. But which particular factor is transforming this, he could not find that. And that was discovered by Avery, McClintock and MacLeod in 1944. Isn't it? But how that DNA is actually working, how that DNA is executing its function, this was not clear. What it makes actually, DNA directly cannot, it was quite imaginable that DNA is it is present inside the, if you are talking about bacteria, there is no nucleus, but if you are talking about eukaryotic cell, it is present inside the nucleus, in the chromosome. These things were becoming clearer. Gradually crossing over was discovered, okay, that the segment exchange takes place, linkage hypothesis was going on, the DNA are present on the, the genes are present on the DNA. This discovery was already there by Sturtevant and Morgan group. So parallelly so many things were going on, but people were not very convinced that how DNA actually functions. So these things, that DNA actually functions, the central dogma, this was given by Crick himself by analyzing all these findings, but that there is the DNA actually works with the help of a protein. DNA expresses a protein, the genes express a protein, that was being proved. Genes execute their function by expressing proteins. देख लेंगे. तो जीन्स आर कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स, ये बात मालूम है, लेकिन ये भी बात मालूम है कि प्रोटीन एमाइनो एसिड से बना होता है और जीन बना होता है न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड और एमाइनो एसिड तो मैच नहीं कर रहा. एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है और 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड्स, और यहाँ पर फिर 4 ही न्यूक्लियोटाइड. तो जेनेटिक कोड का मामला भी नहीं मालूम था कि जेनेटिक कोड मतलब इसमें से 3-3 करके सजा होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि एक एक एमाइनो एसिड को कोड करता है. अब 4 तो न्यूक्लियोटाइड से तो सिर्फ 4 ही एमाइनो एसिड कोड हो सकता है ना, तो प्रोटीन कैसे बनेगा? अगर 2-2 का पेयर में भी बने तो 4 to the power 2 यानी कि 16, ये भी इनकम्प्लीट हो रहा है. तो मैथमेटिकली 4 to the power 3 होने से, यानी 3-3 का कॉम्बिनेशन में बैठने से 64 ये ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हाँ इतना लगेगा ही. 20 एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो कोडोन है वो ट्रिपलेट होना पड़ेगा. ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी से
पता चल रहा है। पहले 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 तुमको मैथमेटिकली मिलाना पड़ेगा चीज़ ठीक मिल रहा है कि नहीं। अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक एक अमीनो एसिड को कोड करे तो ओनली 4 को कोड कर सकता है। अगर दो दो का सीक्वेंस में काम करे, जैसे कि ए यू, यू ए, यू सी यू, जी ए जी, ऐसे ऐसे करके तो 16 टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है, विच इज ऑल्सो इनसफिशियंट। तो देखा जा रहा है कि 16 भी नहीं होगा, तो 3 का कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा होने का एक्सप्लेनेशन बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन ये होना ही पड़ेगा कि 3 का। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। अब मान लेते हैं कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट इन नेचर ऐसे तो पता चल रहा है, तो सपोज मान लो कि AUG इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, ये मिथियोनिन को कोड करता है। अब नाउ मिथियोनिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम AUG, वो इसके साथ हाइब्रिडाइज तो नहीं करेगा। मिथियोनिन AUG के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, तो इसको हाइब्रिडाइज कराने के लिए एक छोटा मॉलिक्यूल चाहिए RNA, जो कि AUG के साथ अगेंस्ट में बाइंड करता है। यह हमको मालूम है DNA का डबल हेलिक्स का जो चारगाफ रूल, कि A के अगेंस्ट में T या U, अगर RNA है तो U, DNA है तो T आना पड़ेगा, U के अगेंस्ट में A आना पड़ेगा, G के अगेंस्ट में C आना पड़ेगा। सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड ही बाइंड कर सकता है, कोई अमाइनो एसिड आके उसके साथ ऐसे नहीं मैच करेगा। तो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, सपोज ये अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ऐसे करके आपस में जो कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड बनाता चला जा रहा है, ठीक है ना। मान लो कि ये मिथियोनिन है, ये एलानिन है, ये वेलिन है, ये ल्यूसिन है, ये फिर मिथियोनिन है, ऐसे करके चल रहा है। ये फिनाइल एलानिन है, ठीक है, ये सेरीन है। ये जो सीक्वेंस आ रहा है ये किस बेसिस पे आ रहा है? ये आ रहा है mRNA में जो ट्रिपलेट कोडन है उसके बेसिस पे। ये एक ट्रिपलेट कोडन हुआ, ये एक ट्रिपलेट कोडन हुआ, ये एक ट्रिपलेट कोडन। ये लाइन जो है ना, इसको मान लो कि 3 न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ऐसे करके ट्रिपलेट कोडन्स है जो कि स्पेसिफिकली कोड्स फॉर दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स। और राइबोसोम, उसके अंदर एक एंजाइम है 23S rRNA, इट इज एन एंजाइम, दिस RNA इज एन एंजाइम, इट इज अ राइबोजाइम, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि व्हेन द अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट हाइब्रिडाइज विद द ट्रिपलेट कोडोन्स, but they are being synthesized in the sequence which is corresponding with their cognate sequence in the DNA or in the RNA, mRNA। तो कैसे ये आपस में आकर के ये समझ रहा है कि यहाँ पर ये कोडोन है। तो क्रिक ने बोला कि दूसरा एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इन दोनों का बीच में रहेगा, जो इसके साथ जैसे कि होता है, देखी होगी कि तुम लोग देखे होंगे कि एक अमेरिकन प्लग मिलता है जिसमें ऐसे फ्लैट टाइप का ये रहता है, मतलब 3 ठो निकला रहेगा ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वाला पॉइंट्स, देखे हो ना तुम लोग, जरूर देखे होगे। ये मेल है, ये कॉर्ड है, ये मिलता है। अब ये इंडियन सॉकेट्स में फिट नहीं होता है, इंडियन सॉकेट्स तो राउंडेड होते हैं, राउंडेड जगह रहता है बना हुआ है ना। तो इसको इसमें फिट, अब सपोज ये मान लो कि ये अमाइनो एसिड है और ये है mRNA, तो ये इसके साथ कैसे फिट होगा? अमाइनो एसिड mRNA के साथ नहीं बाइंड कर सकता, जस्ट लाइक दिस प्लग्स। सो व्हाट इज डन, व्हाट यू डू, तुमको बाजार में मिलेगा एक प्लग जिसका पीछे का पोर्शन रहेगा, जिसका सामने का पोर्शन गोल गोल रहेगा, ऐसे करके निकला हुआ, जैसे कि हम लोगों का नॉर्मली मिलता है ना। ये वाला मिलेगा तुमको, इस टाइप का एक एडाप्टर मिलेगा, ठीक है ना, जिसका सामने का पोर्शन तो ऐसा है और इसका पीछे वाला साइड अगर देखो तो वो मिलेगा इस टाइप का, जिसमें ऐसे फ्लैटेंड सॉकेट्स बना हुआ है, isn't it, जिसमें ये फिट हो जाएगा। नाउ यू कॉल दिस व्हाट, यू कॉल दिस एडाप्टर, है कि नहीं? दिस एडाप्टर इज द tRNA।
ये कॉन्सेप्ट पहले क्रिक के दिमाग में आ गया था कि देयर शुड बी एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। अब उसका साइज वो सोचे थे कि 10-12 न्यूक्लियोटाइड्स का होना चाहिए, जो कि जिसके साथ एक एंड में एमाइनो एसिड आकर बाइंड करेगा और वो दूसरे तरफ इसके साथ हाइब्रिडाइज कर जाएगा। माने कि सपोज ये mRNA है और इसमें यहाँ ट्रिपलेट कोडोन है एक ठो, तो इसके साथ में एक छोटा सा RNA चाहिए जो कि अपना एक एंड में एमाइनो एसिड को टैग कर लेगा कोवेलेंटली और ये हाइब्रिडाइज करेगा विद द mRNA। ठीक है ना। बाद में ये पता चला, वो बाद में उनको मिला कि हाँ इस तरह का सोल्यूबल RNA है, tRNA जिसका नाम है, ट्रांसफर RNA, जिसका काम यही है वो एमाइनो एसिड को ले आता है इस तरह से और एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पर एक बैठा, ये हो गया एक ठो, ये A1 मान लो, बगल वाला में और एक ऐसे आके बैठेगा A2 मान लो। और ये घटना कहाँ हो रहा है? राइबोसोम के अंदर हो रहा है। यहाँ पर राइबोसोम है, यहाँ पर राइबोसोम है। ओके, अब इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये दोनों एमाइनो एसिड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते ही ये वाला tRNA फ्री हो जाएगा, इजंट इट? ये वाला tRNA यहां से कोवेलेंट बॉन्ड बनते ही ये tRNA फ्री हो गया, मतलब वहां पर अब कोई एमाइनो एसिड नहीं है, वो एमाइनो एसिड यहां पर आ गया, इसके साथ आ गया A1। ठीक है ना। अब ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अब राइबोसोम थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि उसको नेक्स्ट वाला कोड करना है ना। यहां पर तीसरा वाला जो वेट कर रहा है, इसके साथ में और एक tRNA के बाइंड करेगा जो कि एमाइनो एसिड 3 को लेकर आएगा और फिर इसके दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों इसका माथा पर आ जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा। सो दिस थिंग विल गो ऑन, दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस, दिस थिंग विल गो ऑन एंड न्यू एमाइनो एसिड्स विल बी एडेड। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? एमाइनो एसिड्स को कौन ला रहा है? tRNA ला रहा है, यानी कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पर tRNA एक एडाप्टर का काम कर रहा है। उसका एक एंड जो है वो सॉकेट के साथ फिट करता है, इंडियन सॉकेट्स के साथ में, और दूसरा एंड जो है वो आप समझ सकते हो अमेरिकन जो प्लग है उसके तरह उसके साथ में भी फिटिंग है, कॉम्पेटिबल है। यानी कि एमाइनो एसिड जो बाइंड कर रहा है ये वाला एंड मान के चलो कि ठीक इसका पीछे वाला पोर्शन है जिसके साथ एमाइनो एसिड वो अमेरिकन प्लग है वो आकर के फिट हो जाता है। इस घटना को, ये जो tRNA के साथ में एमाइनो एसिड का जुड़ना, ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA विथ एमाइनो एसिड्स, या इसको एमाइनो एसाइलेशन भी बोलते हैं, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ये एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज बोल के एक एंजाइम है जो इन दोनों को जोड़ देता है, इसका 3 प्राइम एंड के साथ में एमाइनो एसिड्स को लगा देता है। तो इस तरह से देखा गया कि तब आपके पास अगर 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, यू शुड हैव 20 डिफरेंट कोडोन्स। तो पता चला कि 64 डिफरेंट कोडोन्स होना चाहिए। 16 हो नहीं सकता, 64 ही होना पड़ेगा। बाद में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड पढ़ते हुए कि 64 क्यों है, इसमें से ये एक्सेस क्यों है। 3 तो स्टॉप कोडोन है इसमें, तो 61 एक्चुअली में कोडोन जेनेटिक कोड है जो कि एमाइनो एसिड को कोड करता है। और इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि एक एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन द्वारा कोडेड होता है। जैसे कि फिनाइल एलानिन के लिए अगर 2 कोडोन है, तो सेरिन के लिए 6 कोडोन्स है, लाइसिन के लिए 6 कोडोन्स है, मिथ्योनिन के लिए 1 है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 है, एंड वेलिन ग्लाइसिन इन सब के लिए 4 करके है। तो किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, इस टाइप का कोडोन्स है। वो एक ही एमाइनो एसिड कोड करता है, इसीलिए इतना ज्यादा है। तो इन कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उतना ही tRNA का जरूरत है, एटलीस्ट 20 डिफरेंट tRNA का जरूरत तो है ही, जो कि 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड्स को ले आएगा। बाद में मिला कि करीब 32, अब इसके ऊपर में थोड़ा सा डाउट है, रिसर्च अभी भी पूरी बोल नहीं पाया है। 32 मान के जाए, 32 से 40 के भीतर कुछ नंबर्स है tRNA का, टाइप्स का।
इतना सारा टीआरएनए है जो कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आकर के चार्जिंग के थ्रू वो ले आता है और कोडोन के साथ बाइंड करता है और राइबोसोम उन अमाइनो एसिड्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। यह है एडाप्टर हाइपोथेसिस। सॉरी, proteins are made of amino acids. That means sequence of nucleotides in the mRNA are encoded into sequence of amino acids of a protein. अब जो है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो ये जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन में है उसको कौन निर्धारित कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है? वो ठीक हो रहा है एमआरएनए में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का उसके जरिए। और एमआरएनए का सीक्वेंस कौन ठीक कर रहा है? डीएनए कर रहा है। वो तो हम लोग सेंट्रल डॉगमा का हाइपोथेसिस से पता चला ना। अब तब ये जब हो रहा है, इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न दैट ईच अमाइनो एसिड ऑफ ए प्रोटीन इज एनकोडेड बाय ए ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड कोडोन, जेनेटिक कोड और कोडोन। ठीक है ना, हम देखेंगे जेनेटिक कोड अभी इससे पहले वाला चैप्टर में है इस बुक में। सिंस अमाइनो एसिड्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है न्यूक्लियोटाइड के लिए, न्यूक्लियोटाइड ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन द एमआरएनए देयर मस्ट बी एन एडाप्टर दैट ब्रिजेस दिस गैप बिटवीन द एमआरएनए एंड द अमाइनो एसिड्स। कुछ ना कुछ एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए। यहां पर अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एडाप्टर हाइपोथेसिस, तो ये सिलेबस का ये अकॉर्डिंग टू दैट हो जाता है, वो सिर्फ नहीं लिखा हुआ है। क्रिक सजेस्टेड दैट दिस एडाप्टर मस्ट बी ए स्मॉल आरएनए, ठीक है ना, क्रिक ने ये बताया 1950s के दौरान। एंड लेटर पॉल सी ज़मेकनिक, क्या उच्चारण होगा, एंड यहां पर एक एच होगा, महलन बी होगलैंड फाउंड दैट दीज आर इंडीड some small sized RNAs called tRNAs, इनको मिला। Thus, अब तब इसका मतलब क्या? Thus there must be at least 20 different tRNAs to bind with 20 different amino acids of protein. In fact, there are little more than that, about 40 or more tRNAs considering the codon degeneracy. ये मिला, इससे ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, 40 या उसके आसपास के करीब है। प्रोटीन सिंथेसिस देयरफॉर रिक्वायर्स 4 बेसिक थिंग्स टू अकॉम्प्लिश। क्या क्या? द एमआरएनए, टीआरएनएस, अमाइनो एसिड्स एंड द राइबोसोम्स। ये 4 चीज चाहिए। एमआरएनए जिसमें कि द मैसेज इज प्रेजेंट, द इंफॉर्मेशन। टीआरएनएस जो कि एडाप्टर which will bring the amino acids, and the ribosome, that is the synthesizing machinery. The mRNA contains the protein coding information. tRNA acts as an adapter to bring the amino acids to the template mRNA, and the protein synthesizing cellular machinery, the ribosomes, that create covalent bonds between the amino acids. अब देखो ये छोटा में लिखा हुआ है, इसको तुम लोग अंडरलाइन कर लो। दिस विल बी मोर देन एनफ। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो ये लेकिन है एडाप्टर हाइपोथेसिस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। यहां से लेके यहां तक एडाप्टर हाइपोथेसिस मोटा मोटी जहां पर